So hello everyone and welcome back to the Realty Reveal, your inside look at the world of the real estate. With each episode, we come up with best industry leaders who are passionate about real estate and who are creating new legacy in the Indian real estate market. And today I have with me a very special guest. Please welcome Mr. Ravi Panwar, working as a sales head with the Sikka Mall of Expressway. Hi Ravi, thank you so much for joining us today in this podcast. सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपका एक्सपीरियंस रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अभी तक कैसा रहा है? Definitely, it's mind blowing. If you're into real estate, if you spend it some time into real estate with dedication, definitely you get a good growth. And touch wood, just because of my hard work, dedication, and commitment, I'm sitting here in front of you as a sales head. That's really great. और सिक्का मॉल ऑफ एक्सप्रेसवे में आपको काम करते हुए कितना टाइम हो गया है? See, Sikka Mall of Expressway, we have recently launched. So we have multiple projects. I am looking after commercials. So before we have another project also, Bangon Expressway. So almost we have sold that. Now this is a new launch for Sikka. We can call a new launch for Sikka. So Mall of Expressway for me it's around 2 months and 70% of the area we have sold out. That's great. So let's start with the project in which we are sitting right now, the Mall of Expressway. What is the idea behind its creation और कैसे आप इस project को differentiate करोगे other commercial projects से? The idea is very simple. We did R&D for 2 to 3 months. We figured out कि यहाँ पे क्या-क्या चीजें नहीं है into the city. I basically for me it's around 14 years I'm living into Greater Noida. जो चीजें यहाँ पे missing थी. For example, Greater Noida में अभी तक कोई भी drive through नहीं था. So the first drive-through of Greater Noida Sikka Mall of Expressway पे आ रहा है. मैकडी को हमने साइन कर दिया मैकडोनल्ड्स को. So we have created a drive-through into the project. Second thing, we don't have proper resto bar and clubs. So dedicatedly third floor जो हमने zoning की है मॉल की, उसके अंदर हमने third floor with the terrace we have given it to Lord of the Drinks and Rubaru. Both of them represent good brands into resto bar and clubbing. So यहाँ पे जो सारी चीजें मिसिंग थी प्लस जैसे कि आपने पूछा कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज है यहाँ पे आसपास में, आप उनसे कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हो? Exactly. So we have a totally different module. We don't have any competition with them. They are selling a different product. We are selling a different product. So Sikka has a very well expertise into leasing, right? So we are here into the market since last 40 years. So we are selling lease module product. So शहर के अंदर ग्रेटर नोएडा में जहाँ पे भी आप बैठे, अंसल है, ओसीपी है, वेनिस है, एक दो प्रोजेक्ट्स और है, बट नन ऑफ देम इज ऑन लीज मॉड्यूल. बट डेवलपर आपको कहेगा ये आपका ताला चाबी है, रिस्पॉन्सिबल फॉर लीजिंग इट आउट. बट हियर इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन सिक्का, वी आर टेकिंग दैट गारंटी फॉर नेक्स्ट 30+ years. तो आपका कोई भी व्यूअर अगर हमारे पास आके इन्वेस्ट करता है तो अगले 60 साल की लीज गारंटी सिक्का देता है उसको. यू डोंट हैव टू फाइंड द टेनेंट, वी विल फाइंड फॉर इट. ओके, सो आई फील लाइक अभी डिस्कशन रेंटल प्रॉपर्टीज की ओर ज्यादा जा रहा है, तो मैं आपके व्यूज जानना चाहती हूँ कि रेंटल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट के क्या फायदे हैं? I mean, like, how much experience I have seen each and every investor doesn't belong to the vicinity. हर आदमी 3 से 5 किलोमीटर की रेडियस में जरूरी नहीं है कि आगे इन्वेस्टमेंट करे. We have investors from J&K, we have investors from Maharashtra, and we have investors from Gulf also. So we have national, international, both kind of investors here in our project. तो जो आदमी फॉर एग्जांपल बेंगलुरु बैठा है, तो बेंगलोर से वो आगे अपनी दुकान को लीज आउट नहीं करा सकता किसी को भी. अब इन इन्वेस्टर्स के लिए बेसिकली किसी ना किसी को तो स्टेप अहेड करना था. आज की तारीख में आप देखेंगे पिछले 10 साल में जितने मॉल डिलीवर्ड हुए हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट वेयर आई एम सिटिंग, देयर आर 3 malls which had been delivered. None of the mall is successful. The reason behind that is basically simple कि जो इन्वेस्टर बाहर बैठा है, गल्फ में बैठा है या बेंगलुरु में बैठा है, तो वो अपनी यूनिट को आगे यहाँ पे रेंट आउट नहीं करा सकते. 5% 10% पीपल लिविंग इन गाजियाबाद, नोएडा, सो डेफिनेटली दे उनके लिए भी इतना आसान नहीं है, बट वो समय निकाल लेते हैं अपनी प्रॉपर्टी को लीज आउट कराने के लिए. तो जब एक मॉल के अंदर एक शेडेड एरिया है जहाँ पे कोई भी रिटेल लीज आउट नहीं है, प्लस कुछ रिटेल लीज आउट है, समाउ जो उसका बेसिकली सर्विसेज की कॉस्ट होती है मॉल की, बिकॉज एवरी इन्वेस्टर इज नॉट पेइंग द मेंटेनेंस. सो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आती है. जब इम्पैक्ट आती है लॉन्ग टर्म में 2 साल 3 साल के बाद वो चीजें दिखनी स्टार्ट हो जाती है. तो जब वो दिखनी स्टार्ट हो जाती है तो डेफिनेटली जो फुटफॉल होता है उस प्रॉपर्टी का वो कम हो जाता है. तो यहाँ पे हमने हर चीज का ध्यान रखा है, इन्वेस्टर को ध्यान में रखते हुए. बेसिकली हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो बाहर से ही है. So we are offering a leased out product to each and every investor. आप इंडिया में हो, इंडिया से बाहर हो, आपको कुछ नहीं करना है. You can visit our website. आप डिसाइड कर सकते हैं क्या एरिया आपको बाय करना है, कितना एरिया आपको परचेज करना है.
देन यू विल गेट ईच एंड एवरी डिटेल्स, आरटीजीएस की डिटेल्स आपको मिल जाएगी, आई मीन एनईएफटी की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। उसके बाद विल प्रोवाइड यू द बीबीए। इस बीबीए के अंदर प्रॉपर आपको हम 30+ ईयर्स की लीज गारंटी दे रहे हैं, जिसका हम डिस्कस कर रहे हैं। सो वी आर द ओनली डेवलपर इन टू द विसिनिटी हु आर प्रोवाइडिंग अ guaranteed lease module. So if I'm saying guarantee, it's guarantee, it's not assistance. So being I work with different developers also, when we talk about BBA के अंदर क्या होता है, वो assistance लिख देते हैं, lease assistance, right? This is somehow they're fooling the investors. So here being Sikka, we are not fooling anybody. We are clearly giving the guarantee word into the BBA also. So and we have an algorithm behind that. It's just not we are saying कि 30+ years की lease guarantee दे रहे हैं, जिन brands को हम sign कर रहे हैं, we are signing for next 30 years. Okay. We have more than 1400 expression of interest which we have received because आप कह सकते हैं मोनोपली हमारी है। एक्सप्रेसवे पे दिस इज नॉट लाइक एक्सटेंशन की 60 रुपए 80 रुपए पर स्क्वायर फीट में डेवलपर्स की मजबूरी थी, इतने सारे कॉम्पिटिटर्स है लाइन से मॉल से। तो अगर आप यहाँ से पूरी बात करें तो हार्डली आई बिलीव आफ्टर 15 किलोमीटर गुलशन आता है। सो विसिनिटी में एक्सप्रेसवे पे कोई मॉल नहीं है, एंड अक्रॉस द रोड देन मॉल ऑफ नोएडा आता, वो भी सिक्का गई। सो वो भी सिक्का गई। That's really great. रवि जी, आपके एक्सपीरियंस को देखते हुए मैं एज एन इन्वेस्टर आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं दिल्ली या गुड़गांव जैसी प्राइम लोकेशंस को छोड़ के नोएडा में इन्वेस्ट करूँ तो क्या चीजें सोच के करूँ, और अगर नोएडा में मैं इन्वेस्टमेंट करूँ तो रेसिडेंशियल में करूँ या कमर्शियल में करूँ? सी बेसिकली हाउ मच आई नो, गुड़गांव जब बना था, जब बेसिकली सबसे पहले वहाँ एयरपोर्ट आया था। ये एयरपोर्ट एक ऐसा कनेक्टिविटी पॉइंट है किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी ट्रेड के लिए, उसकी विसिनिटी ऑटोमेटिकली डेवलप होने लग जाती है। तो somehow how much I know, those people who have invested into Gurgaon that period when airport was upcoming, they have got the huge appreciations. For example, if they bought a land at 1 rupee price, today that land is trading at 70 rupees. So they are in plus 69 rupees, right? And same opportunity basically now Noida and Greater Noida is creating for the investors. Already you must be aware about in coming next year 2025, maybe mid-March or April, they are inaugurating the airport also. So when airport is there are lots of businesses which will be operated into the vicinity. So सबसे बड़ा रीजन तो बेसिकली यहाँ पे अगर कोई भी इन्वेस्टर गुड़गांव से उठ के आके नोएडा या ग्रेटर नोएडा में इन्वेस्ट क्यों करे, उसका रीजन ये है कि यहाँ पे एयरपोर्ट आ रहा है। साथ ही साथ में जस्ट नॉट एयरपोर्ट, बेसिकली रियल एस्टेट जो ट्रेड करता है वो डिमांड एंड सप्लाई पे ट्रेड करता है। यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो ऑलरेडी ऑपरेशनल है। यूपी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेसिकली अभी इनिशिएट किया हुआ है, दैट इज मॉक्स, दैट इज मोबाइल ओपन एक्सचेंज। आप जहाँ परी चौक पे बैठे हैं, यहाँ से लेके टेक्स जोन 1, 2, 3 ये 5000 हेक्टेयर एरिया है जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने मोबाइल ओपन एक्सचेंज के नाम पे डिक्लेयर कर दिया। सो समहाउ 5000 हेक्टेयर के अंदर अगर मोबाइल असेंबलिंग यूनिट्स बन रही है, जैसे कि वीवो, ओप्पो, हायर, ऑलरेडी ये इसी स्कीम के अंडर ग्रेटर नोएडा के अंदर बेसिकली अपनी असेंबलिंग या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। गवर्नमेंट आर प्रोवाइडिंग देम सर्टेन बेसिकली सब्सिडीज ऑन GSTs, on their basically whatever the money they are investing, the capital investment, whatever they are doing. So इन सब चीजों को करने के बाद क्या हो रहा है, जब बाहर की कुछ कंपनीज इंडिया में आके निवेश कर रही है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, उनको रहने के लिए घर चाहिए, शॉपिंग करने के लिए मॉल चाहिए। तो पिछले अगर मैं 1 साल की बात करूँ, 3 से 4 कंपनियां तो मेरे सामने है जो ऑलरेडी यहाँ पे ऑपरेशनल हो चुकी है। जिस जगह पे आप यहाँ बैठे हैं, अगर इसी विसिनिटी में 3 से 4 किलोमीटर रेडियस की बात करें, यहाँ पे 1 CR के अंदर आपको 200-250 मीटर का मकान मिल जाता है, लेकिन वो बेसिकली अब 3 CR में भी नहीं मिल रहा है। तो जैसे जैसे यहाँ पे लोग बढ़ते चले जाएंगे, जो आदमी बेसिकली यहाँ पे आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो अगले 2 से 3 साल के अंदर उसका एप्रिसिएशन पे डेफिनेटली फायदा 100% उठा पाएंगे। साथ में ही आप देखेंगे कि यहाँ पे DMIC है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दैट इज कनेक्टिंग यू टू ईच एंड एवरीवेयर। So, वो भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक ट्रेड पॉइंट है, जहाँ पे आप बैठे हैं सबसे बड़ा हॉल्ट है परी चौक, हार्ट है ग्रेटर नोएडा का, और जहाँ पे आप बैठे हैं सबसे बड़ा हॉल्ट है हार्डली 500 मीटर यहाँ से आपका 0 पॉइंट है। तो अगर आप मथुरा जा रहे हैं, आगरा जा रहे हैं, आ रहे हैं बेसिकली, सो वी हैव सम सर्विस अपार्टमेंट्स आल्सो इन मॉल ऑफ एक्सप्रेसवे। एशिया का सबसे बड़ा जो एक्सपो मार्ट है, जो साल में अंदाजन 4 बार तो लगता है, वो जस्ट हमारे प्रोजेक्ट के सामने है। The bus depot, the Parichok metro station, there are hardly 100 steps, not meters also, 100 steps from Mall of Expressway. So अगर आप ग्रेटर नोएडा और इस लोकेशन की बात करेंगे, तो जो इन्वेस्टर आज की तारीख में आपका यहाँ पे आके एक मिनिमम अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अगले 1 साल के अंदर अंदर उसको डिफरेंस नजर आ जाएगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 1 decade, आई एम टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट 365 days. Okay. हाँ जी।
दैट्स ग्रेट। तो बेसिकली कनेक्टिविटी को अगर हम देखें और अप्रिसिएशन पार्ट को देखें तो नोएडा इज द बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। राइट नाउ इफ यू आर लुकिंग फॉर एप्रिसिएशंस, सो मेरे हिसाब से आज की तारीख में ग्रेटर नोएडा एंड नोएडा आर स्टिल अंडर डेवलपमेंट। ओके, they're still under development. There are lots of companies which has moved from Gurgaon to Noida. आपने कहा नोएडा अभी अंडर डेवलप्ड है, तो आपके हिसाब से क्या नोएडा का अभी इंफ्रास्ट्रक्चर इस हिसाब से बनाया जा रहा है कि जब सीजन चेंज हो या आगे कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो तो नोएडा का इंफ्रास्ट्रक्चर गुड़गांव या दिल्ली से कुछ अलग रहे? सर डोंट माइंड, बट गुड़गांव और ग्रेटर नोएडा, नोएडा का हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेफिनेटली कंपेयर कर ही नहीं सकते। गुड़गांव इज नॉट अ प्री प्लान सिटी। गुड़गांव में हमने क्या देखा है कि आपको एक स्कूल मिलेगा, फिर घर मिलेगा, फिर कॉलेज मिल जाएगा, फिर एक अस्पताल भी मिल सकता है। सो ग्रेटर नोएडा, नोएडा दे आर गवर्न बाय द अथॉरिटीज, गवर्नमेंट अथॉरिटीज। सो यहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही, जोनिंग के साथ ही बेसिकली डेवलपर को अलॉटमेंट दी जाती है। सो जहाँ पे हम बैठे हैं कमर्शियल लैंड है, तो यहाँ पे मैं फ्लैट्स नहीं बना सकता। सो ऐसे ही पीछे यहाँ पे रेजिडेंशियल सोसाइटीज है, वहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं बना सकता। तो यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ प्री प्लान्ड है। आपकी प्रॉपर सर्विस रोड्स है, प्रॉपर फ्लाईओवर्स है, प्रॉपर राउंड अबाउट्स है। सो ये सारी चीजें इस शहर की बसावट से पहले ही प्लान हो चुकी है और 10 साल पहले एक मास्टर प्लान निकल जाता है। सो बेसिकली जो अथॉरिटीज है यहाँ पे 3 अथॉरिटी है। दिस इज द डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर। सो वी हैव 3 अथॉरिटीज, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी एंड यमुना अथॉरिटी। सो सबकी अपने अपने स्केलिंग है, अपने अपने हिसाब से सबकी अपनी अपनी जोनिंग और प्लानिंग है। सो बेसिकली वो ऑलरेडी पहले से ही प्लान्ड है कि कहाँ पे क्या बनना है। तो यहाँ पे एज सच कंपेयर टू गुड़गांव कोई चैलेंज नहीं है। आपको पता है इस राउंड अबाउट के बाद सर्विस रोड है, सो डेफिनेटली विल फाइंड द सर्विस रोड। सो इट्स अ प्री प्लान्ड सिटी। एज सच देयर इज नो हेजल इनटू द एरिया। रवि जी, आपका मैंने ये ब्रोशर पढ़ा अभी मॉल ऑफ एक्सप्रेसवे का, तो इसमें लिस्टेड है काफी सारे आपके प्रोजेक्ट्स हैं, रेसिडेंशियल भी, कमर्शियल भी, ऑनगोइंग भी, या भी जो डिलीवर नहीं हुए हैं। तो आपके हिसाब से नोएडा में रेसिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट में ज्यादा फायदा है या कमर्शियल में? अब बेसिकली इन्वेस्टमेंट तो आपको कमर्शियल में ही करनी चाहिए। बेसिकली जो ROI का गेम है वो कमर्शियल में ही आपको निकल के आएगा। बट अगर आप बात एप्रिसिएशन की करें या एंड यूजर की करें तो बेसिकली फिर रेजिडेंशियल भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। दोनों चीज पैरेलली चलती है। तो अगर आज देखें आप कि जिस हिसाब से बेसिकली यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मैंने जैसे आपको बताया जनरेट हो रहा है, तो डेफिनेटली लोगों को घर भी चाहिए रहने के। तो जब घर की इन्वेंटरीज जिस हिसाब से आज की तारीख में ऑलरेडी वी आर सो एग्रेसिवली वर्किंग इनटू नोएडा, नॉट इवन सिक्का, द एंटायर नोएडा मार्केट इज फ्लरिशिंग राइट नाउ. So every day, every developer are selling their apartments also. They are selling their, retails also, food courts also, multiplexes also. So it's hard to compare between both of them. But how much I can differentiate? If somebody want to invest, I suggest to invest into commercials. They give handsome ROIs. If you're looking for appreciations, plus if you're looking as an end user, so then you should come up as residentials, residential apartments. ओके और अगर मैं कहूँ कि मैं नोएडा में रहती नहीं हूँ, मैं गुड़गांव की रेजिडेंस हूँ, तो मैं नोएडा में क्यों इन्वेस्ट करूँ? मेरे लिए क्या फायदे होंगे? मैंने आपको अभी बताया था शायद थोड़ी देर पहले कि आप सिर्फ गुड़गांव नहीं, आप एनीवेयर फ्रॉम द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यू कैन इन्वेस्ट राइट नाउ इनटू नोएडा बिकॉज द एयरपोर्ट इज कमिंग हियर. And into real estate, see how much I know, there's a bare shell land once upon a time. So that was being traded at, for example, 2 to 3 lakh rupees, right? और कुछ समय के बाद वहाँ पे रेलवे स्टेशन आया, बस स्टेशन आया, फिर देन वन डे द एयरपोर्ट केम. सो 2 लाख रुपए की लैंड अब 200 करोड़ की है. सो बेसिकली जो रियल एस्टेट को कहीं ना कहीं एप्रिसिएशन से चीजें जुड़ती है, वो कनेक्टिविटी है, वो लोकेशन है, प्लस उसकी विसिनिटी में क्या क्या चीज आ चुकी है. जैसे कि मैंने बीच में जिक्र किया था, वीवो का भी किया था, हायर का किया, ओप्पो का किया, और आज मैंने जावा का भी यहाँ पे प्लांट देखा है. लाइक वी हैव रॉयल एनफील्ड, सो जावा आर इनटू बुलेट्स, तो जावा का भी यहाँ पे प्लांट आया. सो इफ दे आर बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग हियर, डेफिनेटली दे आर रिक्वायरिंग सम एम्प्लॉयमेंट. जब लोग आ रहे हैं तो लोगों को घर भी चाहिए, लोगों को दुकान भी चाहिए. सो इसलिए जो बाजार है आज की तारीख में ग्रेटर नोएडा का, वो बहुत तेज है. पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर अगर आप देखें, जब से एयरपोर्ट का लोगों को पता लगा है कि 2025 में ऑब्वियसली इनोग्रेट हो जाएगा, तो उस हिसाब से जो एप्रिसिएशन है, बिल्डर भी हर 10वें दिन 15वें दिन. फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करता हूँ, अपने प्रोजेक्ट की बात करता हूँ. हमने इस प्रोजेक्ट को प्री लॉन्च किया था एक एक्स प्राइस पे. आज की तारीख में 70% हम प्रोजेक्ट बेच चुके हैं इन 60 डेज. सो दैट इज द रेस्पॉन्स फ्रॉम द नोएडा मार्केट. सो दीज आर नॉट ओनली नोएडा इन्वेस्टर्स, दे आर फ्रॉम ऑल ओवर द ग्लोब.
So, जैसे आपने पूछा कि गुड़गांव से आप आके नोएडा में क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो हमारा प्रोडक्ट ही लीज मॉड्यूल पे है। आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, आप हमारी सेल्स साइट पे आ सकते हैं और आके आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। मैं आपके ब्रोशर पे देख सकती हूँ ऑलरेडी काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं सिक्का के डिलीवर्ड ऑनगोइंग रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल, वो भी मल्टीपल सिटीज में आपके काफी सारे प्रोजेक्ट्स अभी रनिंग भी हैं। तो आपके हिसाब से कौन से प्रोजेक्ट में सिक्का के कौन से प्रोजेक्ट में अभी इन्वेस्ट करना सबसे ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा इन्वेस्टर्स के लिए? देखिए लाइक आप किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर टेस्ट एंड चॉइस, बट देयर इज ऑलवेज राइट टाइम टू इन्वेस्ट इनटू रियल एस्टेट। सो राइट टाइम बेसिकली व्हाट आई फेल्ट पर्टिकुलरली इज इनटू मॉल ऑफ एक्सप्रेसवे, बिकॉज ये प्री लॉन्च का प्रोडक्ट है। कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ इनॉग्रेल डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, प्लस जो एश्योर्ड रिटर्न्स है, जो इंटरेस्ट पार्ट है वो कहीं ना कहीं आपको डबल मिल रहा है, प्लस साथ में आप जिस लोकेशन पे आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हो यहाँ पे आपको बहुत ही हाई एप्रिसिएशन भी मिल रहा है इन कमिंग 6 to 9 months। सो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है ऑल प्रोजेक्ट्स बिलोंग्स टू सिक्का, बट राइट टाइम टू इन्वेस्ट राइट नाउ इज इनटू मॉल ऑफ एक्सप्रेसवे। दैट्स ग्रेट, मॉल ऑफ एक्सप्रेसवे। दैट्स रियली ग्रेट। जिस हिसाब से आपने हमें समझाया है इस प्रोजेक्ट के बारे में, आई थिंक बहुत सारे इन्वेस्टर्स को अब कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना ज्यादा बेटर होगा। तो रवि जी, आपने काफी कुछ बता दिया हमें सिक्का के प्रोजेक्ट्स के बारे में, पर्टिकुलरली मॉल ऑफ एक्सप्रेसवे। इस प्रोजेक्ट के बारे में आपने काफी तारीफ करी है, तो बेसिकली क्या है इस प्रोजेक्ट में ऐसा, कौन से ऐसी अमेनिटीज आप प्रोवाइड कर रहे हो, कौन से ऐसे फीचर्स नए लेके आए हो जो इसमें इन्वेस्ट करें लोग? बेसिकली सबसे बड़ा यूएसपी इस प्रोजेक्ट का ये है कि ये 30+ ईयर लीज गारंटी के साथ आता है। जैसे कि अर्लियर इनटू द सेम कन्वर्सेशन हमारी बात हुई है कि ऐसा विसिनिटी में क्या है कि आप कुछ नया कर रहे हैं, तो जब भी मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रोडक्ट है मॉल ऑफ एक्सप्रेसवे 30+ ईयर लीज गारंटी के साथ आता है। सो कोई भी आपका इन्वेस्टर जो मॉल ऑफ एक्सप्रेसवे पे इन्वेस्ट कर रहा है, बेसिकली उसको टेनेंट ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगले 30 साल तक सिक्का विल बी रेस्पॉन्सिबल बेसिकली टू प्रोवाइड देम द टेनेंट, एंड टेनेंट विल बी रेस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड देम द रेंटल्स। The rentals will be declared into the tri-party agreements also, into the agreements also. So we are very fair on paper. आपको कोई भी इन्वेस्टर आना चाहता है, ड्राफ्ट कॉपी ऑफ एग्रीमेंट वो पढ़ना चाहता है, we can give it to him, we can give it to her. So basically for that they have to come to the site, sales site office. तो मैं अपने सारे व्यूअर्स के बिहाफ पे आपसे एक लास्ट क्वेश्चन और पूछना चाहती हूँ, ताकि लोगों को नॉलेज भी मिले रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो एक बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि लोगों को किस टाइम पे किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए? बेसिकली जो प्री लॉन्च और लॉन्च पीरियड होता है किसी प्रोजेक्ट का, वो राइट टाइम कहलाया जाता है। जैसे कि कुछ प्री लॉन्च ऑलरेडी हमारा फिनिश हो चुका है, तो जिन इन्वेस्टर्स ने बेसिकली प्री लॉन्च में इन्वेस्ट किया था, तो उनको एक एक्स अमाउंट का डेफिनेटली एक एक्स्ट्रा एप्रिसिएशन या एक्स्ट्रा बेनिफिट डेफिनेटली मिलता है। उसके बाद आता है लॉन्च। सो अभी जैसे कि आप देख रहे हैं मॉल ऑफ एक्सप्रेसवे अभी लॉन्च के पीरियड पे है। सो लॉन्च पे भी अगर आप आके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स डेफिनेटली मिलेंगे। लॉन्च के बाद जो इन्वेस्टर आता है, की बात करूं मैं अगले जो कोई 10 से 15 दिन के बाद आएगा, सो वी आर लेफ्ट ओवर विद लिमिटेड इन्वेंटरीज, जिसपे कोई भी डेवलपर, नॉट जस्ट सिक्का, कोई भी डेवलपर बेसिकली उसमें कोई भी स्कीम नहीं चलाता है। तो रियल एस्टेट के अंदर बेसिकली देयर इज ऑलवेज राइट टाइम टू इन्वेस्ट विद यू नो लाइक व्हेन यू गेटिंग द गुड स्कीम्स फ्रॉम द डेवलपर। जैसे कि आप देखते हैं कि कोई भी ब्रांड अपनी चीज को मार्केट करता है तो उसका एक टाइमर चलता है, अगले 40 घंटे में, 48 घंटे में, 24 घंटे में ये स्कीम खत्म होने वाली है। सो नेक्स्ट 7 days मैक्सिमम वी आर क्लोजिंग दिस लॉन्च। सो 7 दिन के अंदर जो भी इन्वेस्टर बेसिकली आके मॉल ऑफ एक्सप्रेसवे पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली वी आर गिविंग देम हैंडसम अपॉर्चुनिटीज दैट दे कैन फिगर इट आउट विद आवर चैनल पार्टनर्स। इफ दे वांट टू call up directly, they can call at our Sikka head office, or if they have an idea about our location, they are most welcome to the sales side office. Okay, so wrapping up the discussion, Ravi ji, Gitanjali Homestay के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? Gitanjali basically they hold portfolios for the investors, how much I know, and the sum of amount they are holding for the investors is around 2 to 3,000 crore. The turnover, the sale value into the Gurgaon market, how much I am aware about, and he is one of the youngest entrepreneur. The Mr. Sishodia, Sunil Sishodia is the youngest entrepreneur I know, and best wishes to him and Gitanjali. You are doing very well into the market and already a renowned channel partner. Okay, so thank you so much, Mr. Raviji, for joining us in today's podcast, and I'll see you with the very next episode of the Realty Review.